Hi guys, so welcome back to the channel. I hope you are doing great. So in today's video, I am going to be telling you guys that how I scored 94% in my class 12th boards and you can too. So, in this video, I am going to be telling my strategies that I used to follow for my class 12th boards and several points related to how I studied subject wise, best YouTube channels, book recommendations, and last minute exam tips, revision tips. So, without any further delay, let's get into the video. So this video can be seen by both 11th and 12th class students. ये जो strategies है ये commonly anyone can follow. So in economics in 11th we had micro and stats, and in 12th standard we had macro and Indian economic. So yeah, micro is at individual level and macro is at aggregate level, at the level of whole economy. So in macro and micro you just have to understand the concept. सारा जो खेल है वो मेन कॉन्सेप्ट का है. If you do not understand any concept, you will not be able to write your answer and frame your answers. So first important tip is to understand each and every concept. Like in 12th there is first chapter national income. वो पूरा चैप्टर ही आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस करता है. उसमें एक न्यूमेरिकल आता है जो कि बोर्ड्स में लिटरली 6 नंबर का आता है, एंड 6 नंबर फ्रॉम वन चैप्टर न्यूमेरिकल जो कि आपको पता है पक्का आने ही वाला है. तो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प each and everything so that you can understand and write. क्योंकि पता है माइक्रो एंड मैक्रो से कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने. देर आर सम एक्सेप्शंस बट इन नॉर्मल केस देर इज नो डायरेक्ट एज सच क्वेश्चन इन एनी एग्जामिनेशन. या तो वो केस बेस्ड होंगे या फिर वो इनडायरेक्ट होंगे, वो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं. सो मैंने कोई भी 11th एंड 12th में ट्यूशन करा ही नहीं है. जो बच्चे काफ़ी बच्चे ट्यूशन्स भी लगाते हैं, I will definitely not recommend tuitions for economics because best YouTube channels which I used to follow was Sunil Panda sir. Sunil Panda sir की हर एक वीडियो में you guys are just gonna learn each and everything. अगर आप उनका एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, I used to learn things from Sunil Panda sir. सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाते हैं सर, एंड उनका जो पढ़ाने का तरीका इज़ एट एक्सेलेंट लेवल. सो आई लिटरली लव द वीडियोज़ ऑफ सुनील पांडा सर. Then what I used to do is, by understanding concept, I used to just understand and then learn the things, and then I do the practice of writing. I used to solve PYQs, MCQs, chapter wise जो पीछे questions होते हैं बुक के. The book which I followed was of TK Ori and VK Jain. Author की published book है. I will not recommend you any book as such. So I used to read that, and by that I have given my boards, and I have scored 97. Literally out of 100, I have scored 97, which is a very good number. I didn't expect that. Then we talk about Indian economics. Indian economics is full of a theory which you just need to read, learn and understand the concept. It's like a story basically, जहाँ पे इंडिया की स्टोरी स्टार्ट हो रही है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से, देन पोस्ट, देन बहुत सारी स्टोरीज हैं. इट्स लाइक अ स्टोरी एंड यू कैन लर्न इट. लिटरली यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, रीड. काफ़ी लोग बोलते हैं रीड करने से लर्न हो जाता है. नो, यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी पॉइंट सो दैट you can frame your answer in examinations. Many students get confused in dates कि इस चैप्टर की ये अलग डेट्स है, इस चैप्टर की ये अलग डेट्स है. what I do is, मैंने क्या किया था ना, सारे चैप्टर्स की जितनी भी डेट थी मैंने एक सिंपल से पेपर पे लिख ली एंड अपने सामने जो वॉल वेयर आई यूज्ड टू स्टडी मैंने वहाँ पेस्ट कर ली. एंड डेली आई whenever I used to sit, I used to just see the dates and revise, एंड ईजिली इस तरीके से मुझे सारी डेट्स याद हो गई. देन अकाउंटेंसी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है जिसके अंदर 3 बुक्स आती है 12th में. इट्स लाइक कंपनी,
पार्टनरशिप एंड थर्ड वन इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आई थिंक। एंड जिसमें क्या है ना, आपको अकाउंट्स में बस एक ही चीज़ करनी है, पूरे साल आपको बस एक ही चीज़ करनी है, इज़ जस्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन। लिटरली काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप लोगों को अगर एक क्वेश्चन करा दिया जाए तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप हर क्वेश्चन नहीं कर लो, यू डो नॉट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। बिकॉज हर एक क्वेश्चन में नई चीज़ें खुलती हैं, क्योंकि अकाउंट्स में एक इतना सा ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है कि उसको डिसोल्यूशन के अकाउंट में डालना है कि नहीं। लाइक लिटरली इट मैटर्स। तो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। एंड हाउ यू कैन प्रैक्टिस इट, लाइक अगर आप इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं, मेरा मानना तो ये है कि आप इलस्ट्रेशंस करें, बिकॉज मैंने पूरे साल इलस्ट्रेशंस किए हैं। उससे आपको बुक के हर क्वेश्चन का पता चल जाता है, एंड चैप्टर में जो बीच बीच में लिखा हुआ होता है वो भी पता चल जाता है। तो इलस्ट्रेशंस करना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड हर एक इलस्ट्रेशन अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो उसको देख लीजिए एक बार, और फिर अपने हाथ से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि उसका सोल्यूशन का भी पता रहता है। एंड यू जस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है बोर्ड में। काफ़ी बच्चे ये गलती करते हैं कि हम डिसोल्यूशन छोड़ देंगे, हम शेयर्स छोड़ देंगे, ये तो इतने ही नंबर का है। नो, यू डू नॉट हैव टू डू दिस मिस्टेक। दिस इज़ अ वेरी मेजर, जो बच्चे करते हैं वो मिस्टेक है। आपको हर चैप्टर प्रैक्टिस करना है लिटरली, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब पार्टनरशिप लो, अगर आप पार्टनरशिप में एडमिशन नहीं करोगे तो आपको रिटायरमेंट नहीं आएगा, रिटायरमेंट नहीं करोगे तो डिसोल्यूशन, ये सारे चैप्टर्स नहीं आएंगे। सो यू नीड टू डू ईच एंड एवरी चैप्टर। यस, ये हो सकता है कि आपको एक चैप्टर थोड़ा ज़्यादा समझ में आए, एक थोड़ा कम आए, बट यू नीड टू डू ईच एंड एवरी चैप्टर। मैं क्या करती थी ना, लाइक वी हैड एग्जाम्स, मेनी एग्जाम्स, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, देन अगैन बोर्ड्स। इसके बीच में भी हमारे कुछ कुछ चलते रहते थे। सो व्हाट आई डू यूज टू डू इज़, जब हमारे पास टाइम नहीं होता था, लिटरली अगर हाफ ईयरली के एग्जाम में 3 दिन की छुट्टी है, व्हाट आई यूज टू डू इज़, क्योंकि मेरे पास एक बार तो मैंने प्रैक्टिस कर रखे हैं, पर मैं बुक के एक एक क्वेश्चन देख के जाती थी, बिकॉज आई नो कि क्वेश्चन बुक में से ही आना है। मतलब लाइक पैटर्न, मतलब क्वेश्चन का जो डिजिट्स है वो चेंज हो सकती है, बट पैटर्न जो होगा वो सेम तरीके से ही फ्रेम होता है। एंड इट्स वेरी ईजी टू सी इलस्ट्रेशंस फास्ट फास्ट। तो मैंने सारे इलस्ट्रेशंस क्या करती थी ना, देख लेती थी, और जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट लगता था ये मुझसे नहीं होगा, उसको मार्क कर लेती थी। एंड द वेरी नेक्स्ट डे, द मॉर्निंग ऑफ द एग्ज़ाम, मैं वो क्वेश्चंस जो मार्क किए हुए होते थे वो पढ़ लेती थी। एंड इस कारण से मेरा जो एग्ज़ाम होता था वो अच्छा होता था, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। अगर जो मुझे नहीं समझ आया उसको मार्क करके दूसरी बार भी देख लिया, और हाथ से भी कर लिया। तो ऐसे करने से मेरी बहुत सारी चीज़ें ईजी हो गई। So at the very end period, at the time of boards, I prepared a summary sheet in which I included all the formulas of accounts 3 books, जितने भी, जैसे कैश फ्लो में जो भी मतलब मेन मेन पॉइंट्स थे, और जो आपके करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स वाले फॉर्मूले थे। देन अगैन इन पार्टनरशिप में एडमिशन और रिटायरमेंट में जो था, एंड जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स के फॉर्मूले थे, वो मैंने सारी एक समरी शीट में डाल दी थी। And then at the very morning of boards, I was like ready, I am done with the summary sheet। मैंने समरी शीट पढ़ ली, बिकॉज उसमें सारे फॉर्मूले जो भी मेन चीज़ें थी वो सारी इंक्लूडेड थी। एंड आई स्कोर्ड 97, विच इज़ अ गुड नंबर। देन कम्स बिजनेस स्टडीज़, माई फेवरेट सब्जेक्ट, माई पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट, जिसमें क्या है ना, सिर्फ थ्योरी है। दोज हु डू नॉट लाइक थ्योरी आर जस्ट गोना बी लाइक, हम कैसे पढ़ें। बट जिनको थ्योरी पसंद है, लिटरली बिलीव मैं, यू कैन स्कोर 100 on 100। आई स्कोर 96, बिकॉज ड्यू टू सम रीजन्स आई वॉज वेरी सिक। मुझे सबसे ज़्यादा तेज बुखार आया था मेरी पूरी लाइफ का बिजनेस स्टडीज़ के एग्ज़ाम में। बट दैट we should keep aside, and let's just focus that how you can score 100 on 100। थ्योरी है, उसमें पूरे कीवर्ड्स, अगर आपने कीवर्ड्स को पकड़ लिया, समझ लिया, जान लिया, एंड अगर आपने वो पेपर में लिख लिया, यू आर गोना रॉकेट। आप लोगों ने पेपर अच्छे से कर लिया है अगर आपने कीवर्ड्स डाले हैं। कीवर्ड्स का ही मेन रोल होता है बिजनेस स्टडीज़ में। मैं क्या करती थी ना, लाइक आई यूज़ टू लर्न, जैसे मैंने एक टॉपिक ले लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, उसमें 5 पॉइंट होते थे या 6 पॉइंट।
वो जो 5 या 6 पॉइंट्स होते थे वो आई यूज्ड टू लर्न एट नाइट। मैं लर्न करके उनको सो जाती थी। एंड जैसे ही मैं सुबह उठती थी आई यूज टू रिकॉल दैट पॉइंट्स। इससे क्या होता है ना, आपका माइंड जो होता है वो शार्प होता है। वो माइंड आपकी चीज़ों को एक्सेस करता है। एंड आप वो चीज़ें कुछ लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। तो मैं ऐसे करती थी, मेरी कुछ अलग अलग स्ट्रैटेजीज जो है वो आई एम टेलिंग यू। देन कम्स फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके परसेंटेज को बहुत ऊपर ले जा सकता है, बहुत नीचे भी गिरा सकता है। इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। आई स्कोर 92 विच इज़ नॉट अ गुड नंबर, आई नो, बट या इट वॉज माई फर्स्ट बोर्ड एग्जाम। इसमें MCQs कुछ ऐसे आए थे जिसमें आई वॉज लाइक लिटरली कन्फ्यूज कि A भी आंसर है, B भी आंसर और C भी आंसर है, एक नहीं लगता था। बट या, how can you score 100 on 100, not 92? You have to just understand। एंड आपको है ना, मतलब उसको अंडरस्टैंड नहीं करना है, उसको आपको पूरा पेपर ही अपनी भाषा में लिखना है, पर वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। कीवर्ड्स होने चाहिए, पॉइंटर्स होने चाहिए जो कि बुक में ईजिली हाईलाइटेड है। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। एंड देन कम इंग्लिश अगैन, इन विच आई नॉट स्कोर्ड वेरी वेल, 85। इंग्लिश में तो क्या है ना, ट्वेल्थ में ग्रामर भी नहीं है। मतलब ग्रामर जैसे टेंसेस, क्लॉजेज, ये सब चीज़ें नहीं हैं उसमें। सारे फॉर्मेट्स आप याद रख लो, जो भी फॉर्मेट्स है लेटर का, आपके पोस्टर्स का, वट एवर द फॉर्मेट इज़, वो आप याद कर लो। एंड मैं ये चीज़ मानती हूँ दैट इफ़ यू सी वीडियोज़ ऑफ चैप्टर्स इन इंग्लिश एग्जामिनेशन, दैट इज़ नॉट गुड। अगर आप एक एक लाइन को अच्छे से रीड नहीं कर लेते तो वो एक ऐसा होता है कि आप एग्ज़ाम में जाके आपको पता है स्टोरी क्या है, बट यू डू नॉट नो द की वर्ड्स दैट हाउ यू हैव टू फ्रेम द आंसर्स। सो दीज आर ऑल माई subject strategies which I used to follow, and now I'm gonna be giving you some last tips। क्या होता है ना, बोर्ड एग्जाम्स पास में आ रहे होते हैं या प्री बोर्ड आ रहे होते हैं, यूट्यूबर्स भी लाइक 15 मिनट की स्ट्रैटेजी, ये फॉलो कर लो, वो फॉलो कर लो। नो, यू डू नॉट हैव टू फॉलो। यू आपको वो वीडियो को टच भी नहीं करना है। वो पूरी वीडियो जो होती है वो आपके ब्रेन वॉश की होती है। अगर वो बोलता है कि वो आपको एक टाइम टेबल देता है एंड हर एक बंदे का पोटेंशियल अलग है। इफ़ आई कैन डू अ 5 चैप्टर इन अ डे एंड दैट टीचर इज टेलिंग मी टू डू ओनली 3 चैप्टर्स इन अ डे, देन माई पोटेंशियल इज़ लॉस्ट। एंड कोई बच्चा एक ही कर पाता है तो वो मोटिवेट ही नहीं हो पाता कि मैंने अगर 2 चैप्टर नहीं किए, तो वो उसका ना 1 चैप्टर हो पाता है ना 3 चैप्टर हो पाते हैं। तो आई थिंक you should avoid those videos at the very end time. And that's for today's video. And if you guys tell me below in the comment section to show my exam sheets, literally I have my pre-boards sheets, that how I used to write answers, the mistakes that I did and you should not do, I will be telling in the upcoming videos. So tell me below in the comment section. So thank you so much guys for watching this video. Bye.